वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं, वो चुप बैठने वाला नहीं है। वो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ उपद्रव पैदा करने की कोशिश करता रहा है। अभी जैसे बांग्लादेश में रेजिम चेंज और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को लेके कुछ-कुछ चीज़ें। तो माय आइडिया इज़ टू ब्रिंग अ नैरेटिव टू द यूथ which is unadulterated, which is not rooted in sensationalism. It brings the correct perspective of things that is there in the society. I come from this border town of Akhnur. It is situated on the banks of River Chenab, which is, you know, blessed by the Mata Vaishno Devi, and it lies in the foothills of Himalayas. Jai Hind everyone, welcome to the another episode of Indian Warrior Talk Show. Today we have with us Navjot Singh sir, who is ex-IB officer and enforcement officer. Sir has also worked in corporate in his initial years and now is a well-known mentor and a motivational speaker. And we'll be knowing about the challenges he has faced and how did he tackle in his life. And also we will be focusing on the current situation, whatever is going on in the world now. So once again, welcome sir. Thank you, Himanshu. Thank you for inviting me on your platform. You're doing a really good work, and I wish you all the luck. और आपके audience को भी जय हिंद और I wish them all the luck. First of all, please tell us about your initial journey. Well, I think my entire life and career has been a roller coaster. It has been an adventurous experience all through. For your audiences, if I may tell, I come from this border town of Akhnur. It is situated on the banks of River Chenab, which is, you know, blessed by the Mata Vaishno Devi, and it lies in the foothills of Himalayas. So come from this very beautiful, quaint, small town. My grandparents, my grandfather, Sri Sansar Singh ji, he was a farmer and also a teacher at that time. And it was his hard work and obviously the hard work of my parents and their support that we could traverse the hard yards. You know, in life we see times will not be same all the time, but it is the support system. It is the people behind you who stand behind you like a rock. They keep you going. तो मैंने अपनी इनिशियल जो एजुकेशन है वो अखनूर से ही की है. आई स्टडीड फ्रॉम सेंट फ्रांसिस, अ कॉन्वेंट स्कूल है. आफ्टर दैट आई टुक एन एडमिशन इन अ वेरी गुड स्कूल इन जम्मू, रणबीर स्कूल. जो जम्मू के हैं उनको पता रहेगा, श्री रणबीर मेमोरियल स्कूल. इट्स वहाँ पे कुछ डिफरेंट सेक्शंस बनाई जाती है कैटेगराइज करके. उसके बाद जब मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया, स्कूलिंग के बाद आई जॉइंड माय इंजीनियरिंग इन जम्मू इटसेल्फ, जम्मू यूनिवर्सिटी. In my college, I would like to mention the name as well, the Government College of Engineering and Technology, my alma mater, contributed a lot in my journey. After completing my graduation, I joined the Tata Group as a consultant engineer. और उसके बाद 2-2.5 साल वहाँ जॉब करने के बाद, I decided that though corporate offers a very promising career, I decided to call it quits at the time when I was doing really good. I had offers to work on site. I was working on a project based in London that time. My seniors, they advised me कि तुम एक बड़ा गलत फैसला ले रहे हो, लोगों को जॉब मिलती नहीं है और तुम छोड़ने की बात कर रहे हो. तो but since I had the backing of my parents and my conviction was strong, I decided कि let's go ahead with it. फिर उसके बाद अखनूर में ही एक एनजीओ की स्थापना की अपने छोटे भाई के साथ और कुछ दोस्तों के साथ मिलके. हमने अखनूर में पहली बार एक मैराथन ऑर्गेनाइज कराया ऑन द थीम ऑफ फिटनेस, जय जवान जय किसान. एंड वी ऑल्सो क्रिएटेड अवेयरनेस, क्लीनलीनेस ड्राइव यहाँ पे हमने कंडक्ट करवाई. लोगों में यहाँ पे जागरूकता पैदा करने का हमने एक प्रयास किया. तो ये एनजीओ का एक सफर था. बाद में फिर गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की. उस दौरान मेरे काफी सारे एग्जाम्स भी क्लियर हुए और फिर मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, जो मैंने 2 बार किया. पहली बार मुझे लगा कि अभी मुझे कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, लेट मी सी वेदर I can find another opportunity. तो फिर सेकंड टाइम मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो, I happened to join the bureau. I served there for a good 5 years, and after that I transitioned into my role as an enforcement officer, which I qualified the UPSC exam back then. So this has been a brief journey. Recently also I have been actively involved in interacting with kids, the young boys and girls, and I am loving this phase of my life, where I feel whatever the struggles, whatever the experiences I had, I'm trying to give it back to them so that जो हमारे pitfalls थे, वो उनसे सीख लें.
एक podcast also have started. We have completed. We're closing in on 50 episodes now. We have been able to bring men and women of eminence from all walks of life, from Olympians to DIGs to politicians to member parliaments. So we're trying to. My idea is to bring a narrative to the youth, which is unadulterated, which is not rooted in sensationalism. It brings the correct perspective of things that is there in the society. So this is a little I'm trying to do in my humble capacity, and God has been kind with youngsters like you who are also doing great work. So they keep inspiring us to do even better work. So that's a little bit about me. And I have also watched few episodes there, and it's really inspiring to see the champions you are inviting, and they share their stories, their struggle, and ups and downs. These are the part of life. And जो उसको पीछे छोड़ करके लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, तो उनसे हमें लाइफ में डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलता है. And you're also one of them because, as you mentioned, you belong from J&K. So life in J&K, as we have seen, like हमारा जो एक perspective है, it is all about militants, terrorists all over the area. The army is guarding those areas. So, did you also face any challenges like militancy in that area? या फिर उस टाइम पे कैसा situation था and अभी कैसा है? Because this connotation or this perspective ये जो बना हुआ है जम्मू कश्मीर को लेके, Jammu Kashmir is more than just militancy. Jammu Kashmir is a beautiful place. We have lot of tourist places here. People here are very warm and kind. And yes, we have been facing the specter of terror in Jammu Kashmir, cross-border terror, since 1989, 87, 89, when the specter, the Pakistan started to infuse a certain homegrown terrorist into India through its terror factory that it has set up in Pak-occupied Kashmir. But despite the challenges, despite a lot of things that the state of Jammu and Kashmir has faced, it has a lot of historical baggage coming through. When in 1947, when India became independent, at that time, there were 3 princely states which were not integrated. One of them happened to be Jammu and Kashmir, apart from Junagadh and Hyderabad. So from 15th August 1947 to 26th October 1947, I would say Jammu Kashmir was an independent country for 73 days. And on 26th of October, when Maharaja Hari Singh, the then king of Jammu Kashmir, he signed the instrument of accession, तब हमारा जो विलय हुआ जम्मू कश्मीर का इंडियन यूनियन के साथ, उसके बाद बिकॉज एक बड़ी ही एक दिलचस्प और एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बनी जम्मू कश्मीर की, तो तब से जो उभरते उभरते रुझान आए, 87 89 में क्या हुआ, कैसे मिलिटेंसी शुरू हुई, कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ, किस तरह से वो प्रॉब्लम का जो सीन था 1996 तक हमने देखा कि मिलिटेंसी अपने पीक पर थी. देखिए, यूथ अपनी गोली से मरे या बाहर की गोली से मरे, खून तो अपना ही बहेगा. तो ये जम्मू कश्मीर की जो रियासत है, जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा दुखों का, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा ब्लडशेड देखा है. और जम्मू क्षेत्र में शायद इतना हमने उस चीज को नहीं देखा है, बट कश्मीर के जो मेरे दोस्त भी हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से बचपन में भी उनको एक डर के माहौल में उनको रहना पड़ता था. कभी भी मिलिटेंट्स आ जाएंगे या क्या होगा, एनकाउंटर शुरू हो जाएगा, तो उस तरह का एक माहौल था. लेकिन पिछले एक दशक में हमने देखा है किस तरह से मिलिटेंसी पे कंट्रोल लगा है. 370 हटने के बाद काफी हद तक कम हुआ है. लेकिन फिर भी देखिए, जो पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं, वो चुप बैठने वाला नहीं है. वो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ उपद्रव पैदा करने की कोशिश करता रहा है. अगर मैं आपको अखनूर की बात बताऊं, जहां से मैं आता हूं, एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि 1965 की वॉर में, 1965 की जो जंग हुई थी, तो तब क्या था कि पाकिस्तान का उस वक्त ये टारगेट था, क्योंकि इस इलाके में तब इतनी फौज नहीं थी, क्योंकि ये थिएटर इतना हेविली गार्डेड नहीं था. तो तब पाकिस्तान का एक एजेंडा था कि जो अखनूर का एक ब्रिज है रिवर चिनाब पे, जो बाकी जम्मू के इलाके को अखनूर से कनेक्ट करता है, चिनाब ब्रिज, तो उनका टारगेट था इस ब्रिज को उड़ाना है और इस इलाके को अपने कंट्रोल में कर लेना है. तो तब काफी पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक्स थे, वो काफी मजबूत, एक उनका एक वो था, दबदबा था उस वक्त. हमारी टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली इस क्षेत्र में थोड़ी इंफीरियर मैं कहूंगा, और हमारी जो एक ही डिवीजन थी, तो वो एक काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था हमें. लेकिन थैंक्स टू पाकिस्तान की अपनी गलती से उस वक्त जंग के बीच में उनको बदल के जियाउल हक को बना दिया गया उस कमांड का हेड. वो जो ट्रूप्स में उसमें दिक्कत आ गई, उनको कमांड कौन करेगा और आगे का हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, वो 2 दिन हमें इंडिया को मिल गए अपने आप को रीग्रुप करने में, और पठानकोट से हमें एयर सपोर्ट मिलने का एक मौका मिल गया.
और हम फिर कामयाब हुए जम्मू कश्मीर के इस इलाके को, अखनूर को भारत का हिस्सा बनाए रखने में। अदरवाइज अगर उस वक्त शायद वो पाकिस्तान ना गलती करता और कहीं ना कहीं अगर हमारी रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंचती, तो शायद आज हम ये पॉडकास्ट ना कर रहे होते, मैं पाकिस्तान का बाशिंदा होता शायद। एंड आई एम ग्रेटफुल टू the forces, the Indian Army and the air forces at that time and the leadership at that time, जिन्होंने कुछ फैसले लिए जिसकी वजह से ये इलाका भारत का हिस्सा बना रहा। एंड I can proudly say, and I'm an Indian and happy to be a part of this country. Yeah, thank you. It's really great to know about this incident, sir. And it is because of the armed forces only that we are sitting here peacefully. क्योंकि हम देखते हैं आज बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, यूक्रेन और रशिया का ले लें, 2-3 सालों से लड़ाई चल रही है। इजराइल का ले लें, रेड सी पे देख लें, फाइटिंग चल रही है। बाकी हम बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वहां पे फाइट्स चल रही हैं आजकल, बट इंडिया इज द प्रॉब्ली ओनली कंट्री आई सी जहां पे बहुत सारे जो डिफरेंट हमारे जो इंडिया को बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो दैट इज गोइंग ऑन पीसफुली। बेशक छोटे मोटे लड़ाइयां इधर उधर हो जाते हैं, बट दैट वो भी होना जरूरी है आई गेस। लेकिन वी थैंक आवर आर्म्ड फोर्सेस, दे आर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स एंड द कोस्ट day and night, and because of them we are here sitting peacefully. And so please, you also mentioned that you worked in corporate for a few years, so how was your experience as a corporate employee like during that time? मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि अगर आप अपना दृष्टिकोण बदल लेंगे तो आपको चीजों को देखने का आपका जो रुझान है वो बदल जाएगा। तो मैं नहीं कहूंगा कि कॉर्पोरेट अभी भी टॉक्सिक है या ये इस तरह की शब्दावली में नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं इसमें what I would like to tell you on this is, see, there are challenges and there are requirements of a certain service profile. If I recount my own experience in the corporate, so thankfully in all my jobs I had been lucky to get good postings, like I had been lucky to work with good bosses, and it has been a very good experience as of now. So in my corporate experience, my training, it happened in a small town Haldia in Calcutta. So starting there, where we were a group of 400 trainees. So वहाँ पे it was an amazing 3 to 4 months where we underwent training, we do culturals, we do a lot of other things. और जब ट्रेनिंग के बाद आप डायरेक्टली आप पूरे कैंपस, आप पूरे ऑफिस में आते हो, प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट में, तो आपको एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, बिकॉज वहां पे आपको डिलीवरेबल्स डिलीवर करने होते हैं, बिकॉज द क्लाइंट विल बी पेइंग द कंपनी द मनी, इट नीड्स द वर्क टू बी डन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। और देखिए जैसे कॉर्पोरेट में, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से हमारे क्लाइंट्स मोस्टली यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, दे आर फ्रॉम द आउटसाइड। सो वो टाइम जोन्स की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमें लेट और टाइमिंग्स में काम करना पड़ता है। पर हैविंग सेड दैट, आई वुड आल्सो लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप 14-14 घंटे काम करें तभी आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सीड हो सकते हैं। आप अपनी सैनिटी अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बर्नआउट होगा। I have been, when I was in the corporate, there was this senior of mine who had worked in UK for 4 years, and he came back and we were discussing one day कि यार नवजोत, यूके तो काम कर लिया, ये सब ठीक है, जब रात को सोते हैं वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो बट देयर आर फ्रेंड्स, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिनको कोडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो सी हर इंसान को ना अपनी अपनी नीश पहचाननी है, अपना स्किल सेट पहचानना है कि वो किस फील्ड में ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो ये तो प्रिविलेज है कि जो हम चाहें और वही काम कर पाए, ये तो प्रिविलेज है। पर कई बार या तो हम उस काम में अपना मन लगा लें, या फिर ऐसा काम ढूंढे जहां हमारा मन लगता हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक वो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए सिचुएशंस को लेके कि अगर हम रेजिस्ट करेंगे, हम उन चीजों को रुकावट पैदा करेंगे, तो फिर हम कहीं ना कहीं अपनी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बैलेंस बनाना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, तभी हम कॉर्पोरेट को और अपनी लाइफ को हम बैलेंस कर पाएंगे। और रादर देन ब्लेमिंग द सिस्टम इटसेल्फ, वी हैव टू वर्क अ वे अराउंड इट। जो लीडर्स हैं, जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम, बिकॉज स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जिन एम्प्लॉइज का मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग अच्छा है, वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सेइंग आल्सो ना कि डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। सो अगर हम ऐसा फॉलो करेंगे लाइफ में तो कभी भी हमें ऐसा कोई सिस्टम है या फिर जो एनवायरनमेंट है वो हमें टॉक्सिक लगेगा नहीं। एंड ये सारी चीजें हैं, एंड हमें अपना देखने का नजरिया बदलना होता है। कोई भी चीज को, कोई भी चीज खराब नहीं होती, उसे उस नजरिए से देखते हैं तब हमें वो ऐसा लगता है।
So that is the दृष्टि thing. बदलोगे तो सृष्टि बदल जाएगी. करेक्ट सर, आई टोटली एग्री. दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदलेगी. बहुत अच्छा बोला सर आपने. सर जैसा हमने अभी पाकिस्तान जो हमारा नेबर है उसके बारे में बात किया, हमारे और भी नेबर्स हैं, लाइक इफ वी टॉक अबाउट चाइना, बांग्लादेश, वो भी मुझे लगता है पाकिस्तान से कम नहीं है. चाइना का भी अभी रिसेंट केस आया था कि दे हैव बीन लाइक अपने हमारे बॉर्डर से अभी पीछे जाने लगे हैं. तो See, our relationship with China is a kind of up and down ever since we became independent. हम साथ में independent हुए थे, हम 47 में हुए, 49 में हुए. It is a communist country on the ideology of Mao Zedong, and we are more of a socialist, Nehruvian socialism हमने initially अपने 30-40 years में हमने follow किया, है ना? और किस तरह से चाइना का राइज हुआ, उनका जो मार्केट इकोनॉमी को उन्होंने फॉलो किया, मिक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी एज वेल एज उनका जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, and now they are blossoming like anything. So China's policy ever since has been to maintain its hegemony in the global south. और global south में अपनी particularly South Indian Ocean region है, which if I talk about the Malacca Strait, it boasts of around trade of $5 trillion annually through that strait itself. So apart from that, China through its Belt and Road Initiative, its OBOR, and other initiatives that it has been taking, it is trying to flex its muscles. Ukraine war होने के बाद Russia has also been inching closer to China. So that is not a good sign for us. Coming to the borders that we share with China, Eastern Front or the Western Front, or a little bit there in Sikkim with Tibet. So with there, what we have an issue is China will always try to pull a few strings. इसका ओवरटली ओवर एग्रेसिव नहीं होता है चाइना, कभी भी उस तरह का एग्रेशन 1962 के बाद नहीं मिला है. चाइना का पॉलिसी रहा है 2 इंच आगे जाओ 1 इंच पीछे आओ. सो दैट इंक्रीमेंटल उसका ग्रोथ इंक्रीमेंटली वो आगे बढ़ता है. और जैसे इसका सीपेक का जो कॉरिडोर है, दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू द Xinjiang province and currently the Pak occupied Kashmir. So it kind of challenges India's sovereignty, क्योंकि हम we consider POJK as a part of India, integral part of India, and China building its infrastructure through that place to the port of Gwadar in Pakistan. तो ये हमारी sovereignty को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करता है. हमने पिछले 4-5 साल में देखा किस तरह से डोकलाम में एक इंसिडेंट हुआ, फिर गालवान स्प्रिंग्स गालवान में हुआ, दौलत बेग ओल्डी में हुआ. तो ये चाइना का, अगर हम दौलत बेग ओल्डी की बात करें, DSDBO जो रोड भी है वहां से, तो वो जो डापसंग प्लेन्स है, डापसंग प्लेन्स एक देखिए उस कोल्ड डेजर्ट में एक बड़ा ही प्लेन इलाका है, बिल्कुल समतल जमीन, जो जिस कंट्री के पास भी वो कंट्रोल उसका होगा, उसको अपने मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च करने में काफी आसानी होगी. तो जो 1962 की वॉर के बाद जो अक्साई चीन वाला पार्ट भी उसके पास गया, तो चाइना हैज एन अपर एज. बट रिसेंटली हमने देखा किस तरह से कुछ ट्रूस हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में. प्रेसिडेंट जी एंड आवर ओन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने मिले हैं और कुछ उन्होंने बोला है कि वी विल डी एस्केलेट द मैटर. पर देखिए, अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की लोकल मिलिटेंट अटैक्स की बात करें, मैंने एक टॉक शो में ये पहले भी बात कही थी कि जो मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं पीर पंजाल वैली में पर्टिकुलरली, तो इसमें एक चाइना एंगल है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते. उस पीर पंजाल रीजन में एक रियासी, जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लिथियम के 6 मिलियन टन रिजर्व्स पाए गए हैं. और अगर आप ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स की बात करें तो 60% ऑफ द ग्लोबल लिथियम ट्रेड चाइना कंट्रोल करता है. अगर आपने सुना होगा द ABC ट्रायंगल, द लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, तो 56% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन वहां से आती है. चाइना की अपनी प्रोडक्शन 8% है. लेकिन कुछ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स और माफियाज के थ्रू चाइना ने ओवरऑल जो लिथियम ट्रेड है उसको कंट्रोल करके रखा है. बिकॉज आपको पता है जैसे ईवी इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और हाइब्रिड इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर्स में काफी ज्यादा रोल है लिथियम का. और चाइना नहीं चाहेगा कि अगर हमारा जो इंडिया का जो लिथियम रिजर्व्स अगर टैप इन हो जाता है, अभी हम उसको कर नहीं पाए हैं, पर अगर हम कर पाते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं वो चाइना की मोनोपोली को इम्पैक्ट करेगा. तो इसके हम काफी और इनिशिएटिव्स भी लेते हैं. सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव हमने जो ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ हमने स्टार्ट किया था, ताकि हम अपने जो सप्लाई बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई कर ले. तो एट द सेम टाइम ऑल्सो the government is trying to build infrastructure on the LAC, line of actual control with China, ताकि in case of a war, देखिए अब इंडिया 1962 वाली सिचुएशन में नहीं. we have a much stronger army, we have a much confident army and we are ready to take up many challenges. लेकिन एक रियलिटी चेक भी बहुत जरूरी है. कहीं ना कहीं जो लेक्यूनाज हैं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में, जो हमारी इक्विपमेंट्स की भी कहीं ना कहीं कमी है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके हो गया, या प्री फैब्रिकेटेड जो वहां पे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, चाइना उस मामले में हमसे काफी बढ़कर आगे है. अरुणाचल वाले रीजन में
बिल्कुल LAC के पास उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल लास्ट माइल तक पहुंचा चुकी है। हम कहीं ना कहीं वहां अभी थोड़ा लैग कर रहे हैं, तो हमें उन मुद्दों पे भी काम कर रही है सरकार। द गवर्नमेंट, द BRO इज बिल्डिंग इट्स रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आई थिंक अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। देखिए, जंग ना तो चाइना अफोर्ड कर सकता है, ना इंडिया अफोर्ड कर सकता है। ये जो वर्बल वॉलीज हैं, ट्रेड वॉर्स हैं, या जो एक दूसरे को थोड़ा सा इधर उधर पुल द स्ट्रिंग्स करना, ये जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग चलती रहती है। Visited China, I think 5-6 times. उनके अलग अलग सिटीज में आई वेंट टू शंघाई, आई वेंट टू क्विंदाओ, और भी सिटीज में मैं गया था, एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच इज देयर इन चाइना, दैट इज इनसेन, यू नो। अगर हम इंडिया में बात करते हैं कि देखो ये चाइनीज प्रोडक्ट है, इस पे तो विश्वास नहीं कर सकते, बट इफ वी गो टू चाइना एंड वहां की चीजें अगर हम खरीदते हैं, दैट इज लाइक वेरी ड्यूरेबल। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बाहर एक्सपोर्ट करने की चीजें होते हैं वो उसको बहुत ही लो क्वालिटी बनाते हैं, और देश के लिए जो भी वो बनाते हैं दैट इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी ड्यूरेबल। तो ऐसा मेरा कि एज अ होल दे आर वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल, एंड आई थिंक दे हैव डेवलप्ड अ लॉट, और इंडिया को वहां तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है हम्म। सर। एंड months back we also saw there was a regime change in Bangladesh, which is also our neighbor. तो आखिर ऐसा क्या चल रहा है? हमारे नेबर्स में ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है सर। आपको क्या लगता है बांग्लादेश के केस में? देखिए, एस्पिनाज की दुनिया में जो हो रहा होता है वो अक्सर पब्लिक आई से काफी दूर होता है। हमें जो न्यूज चैनल्स में हमने देखा, जब शेख हसीना जी को ढाका छोड़ के भागना पड़ा, वहां पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आ गए रोड्स पे और वो सब हुआ, उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए, हमने सिर्फ वही देखा, लेकिन उसके पीछे की कहानी हमें नहीं पता है। यूएस के एक काफी सीनियर ऑफिसर है डोनाल्ड लू, वो 2 महीने पहले उन्होंने ढाका विजिट किया था और 2 महीने बाद उनका रिजीम चेंज हो गया। तो अंदर की काफी कहानियां चलती हैं, काफी मनूवरिंग चलती है। आईएसआई का इसमें किस तरह से रोल है, बिकॉज जो बांग्लादेश की आर्मी है, बांग्लादेश आप जानते हैं कि पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से था। तो उनकी आर्मी में देर आर टू टू फैक्शंस। एक फैक्शन है जो प्रो इस्लामिस्ट है, प्रो पाकिस्तान है, एक थोड़ा सा इंडिया लीनिंग की तरफ है। तो ये रिजीम चेंज होने से क्या हो गया है, जो प्रो पाकिस्तान फैक्शन है उसको भी थोड़ा सा एक हवा मिली है फिर से अपनी एक्टिविटीज को जमात इस्लामी के साथ मिलकर थोड़ा सा उन एक्टिविटीज को चलाने के लिए। इसके साथ साथ CIA का बिग गेम जो साउथ एशिया में चल रहा है उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। CIA हैज बीन ट्राइंग टू क्रिएट ट्रबल इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारा बहुत ही देर से चल रहा है। अगर हम जो कुकीज माइकीज का कॉन्फ्लिक्ट भी देखें, उधर भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स हैं देयर इज अ अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन दिस। नोबडी कैन वेरीफाई दिस, बट समथिंग इज गोइंग बिहाइंड द कर्टन्स। ऑल्सो एक अमेरिकन प्लान है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक क्रिश्चियन नेशन बनाना है, कुकी नेशन। दे वांट टू क्रिएट अ कुकी लैंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, विच इंक्लूड्स कुछ बांग्लादेश का कुछ हिस्सा मिला के, कुछ म्यांमार का कुछ हिस्सा मिला के, कुछ हिस्सा मिला के ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, कुकी डोमिनेट एरियाज का। तो ये एक अलग देश बनाने का इनका बहुत ही लंबी देर से ये प्लानिंग चल रही है। इसके साथ में किस तरह से यूएस फंडिंग करता है, अब जैसे हमने देखा कि बांग्लादेश की, अगर हम वापस आए बांग्लादेश में, तो एक रिजर्वेशन का मुद्दा जो फ्रीडम फाइटर्स थे 1971 की वॉर में जिन्होंने सैक्रिफाइसेस दी थी, उनकी फैमिलीज को ये रिजर्वेशन दिया गया था। तो वो रिजर्वेशन हटा दिया गया था, लेकिन फिर से हसीना सरकार उसको वापस ले आई, बिकॉज थोड़ा सा वो शेख हसीना का वोट बैंक भी था। पर ये फॉल्ट लाइन थी, जो लोग थे जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिला था, तो वो ऑब्वियसली रोड पे आएंगे। तो हमेशा ये फॉल्ट लाइंस होती हैं जो सोसाइटी में, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है फॉरेन एजेंसीज के द्वारा। किस तरह से CIA ने उसको एक्सप्लॉइट किया, फिर मोहम्मद यूनुस को आगे प्रोजेक्ट किया, अभी वो केयर टेकर PM भी बने हुए हैं। तो बहुत कुछ होता है जो अक्सर हमें पता नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा कि खालिस्तान के बारे में भी बहुत चर्चा चलता रहता है, बट इट्स नॉट, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। आप लाइक जहां तक कैन मैं डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स? खालिस्तान की बात करें अगर, तो देखिए ये प्रोपेगेंडा काफी देर से यूएस और कैनेडियन और ये जो फॉरेन एजेंसीज हैं, ISI बैक्ड एजेंसी हैं, चलाती हैं। अगर आप जम्मू पंजाब में देखें, 99.99% लोग हैं उनको नहीं चाहिए खालिस्तान। नोबडी वांट्स इट, एवरीवन इज हैप्पी टू बी। तो लेकिन जो हमारे प्रतिद्वंदी देश है, पाकिस्तान है, वो भारत को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है किसी ना किसी तरह उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया जाए। नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स को लड़ा देंगे, इधर इधर कम्युनिटीज को, रिलीजन के बीच में फॉल्ट लाइन पैदा कर देंगे, साउथ में तमिलियंस और नॉन हिंदी स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग में लड़वा देंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लगता है हम
उस चीज से अवगत नहीं होते, हम मासूम जनता है, मासूम जनता उसका शिकार बनती है। अब अगर हम बात करें कि CIA का, आपने खालिस्तान का मुद्दा छेड़ा, तो ये गुरपतवंत सिंह जो पन्नू गाय है, जो सिक्स फॉर जस्टिस का जो सो कॉल्ड फाउंडर है, he is not, I will not even call him a Sikh, he is a agent of CIA, he is projected by CIA to create nonsense. So that is, we should not take him seriously also. The people who understand geopolitics and how these things function, ये उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी हमने देखा कि ब्रेक्सिट के बारे में आप जानते हैं, ब्रेक्सिट हुआ था 2016-17 में, यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया। इंडिया का EU के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन जब यूके बाहर आ गया तो यूके के साथ हमें एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करना पड़ेगा। ऑलराइट, पर अब यूके क्या चाहता है कि वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो उसकी शर्तों पे हो। अब जब इंडिया नहीं करती है ऐसा, बिकॉज इंडिया का अपना क्लाउड बढ़ रहा है, तो वो क्या करती है, कुछ एजेंसीज के थ्रू, अपनी MI6 के थ्रू कुछ लोगों को हायर करती है। आपने देखा होगा एम्बेसीज के बाहर प्रोटेस्ट हो जाती है कभी, इंडिया की यूके एम्बेसी के बाहर। वो कौन लोग होते हैं? These are the people who are funded by these agencies of CIA, the MI6, the ISI. All this is funded. This is all trying to create कि इंडिया में अगर माहौल खराब होगा तो इंडिया तरक्की कैसे करेगा। तो ये सारी चीजें जो हमें दिखती हैं वो एक्चुअली होती नहीं है। अब ट्रूडो साहब की बात करते हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों भारत और कनाडा के रिलेशंस में काफी गिरावट आई। अब ट्रूडो साहब को अपनी लोकल इलेक्शंस में अपना वोट बैंक तो सिक्योर करना पड़ेगा, इसीलिए वो इतना, ये जो माहौल उन्होंने गर्म किया हुआ था, आप देखेंगे कुछ महीनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो दिखता है ना, एक्चुअली ये उसको ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। तो ये सब एजेंसीज है। पाकिस्तान में कुछ एक खालिस्तानी ऑपरेटिव थे, सो कॉल्ड थे, बबर खालसा थे। ही वाज अ मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, हिज नेम वाज चेंज्ड, ही वाज रीनेम्ड एज अ सिख एंड ही वाज प्रोजेक्टेड एज अ लीडर ऑफ खालिस्तान इन वन ऑफ द गुरुद्वारास इन यूके। बहुत कुछ होता है पर्दे के पीछे, हमें वो नहीं पता होता है। अभी रिसेंट में लाइक एज यू नो डोनाल्ड ट्रंप वन द इलेक्शन इन द USA, और उनका एक अभी पॉलिसी आने वाला है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है कि उसकी वजह से स्टूडेंट्स जो यहाँ इंडिया से जाते हैं इंटरनेशनल पढ़ने, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। द सेम गोज विद कनाडा आल्सो आई थिंक। तो कनाडा वाले भी अभी इनका जो माइग्रेंट्स हैं उसको स्टॉप करने के लिए वो अलग-अलग पॉलिसीज ला रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ये जो एक बहुत ही ग्रुप था स्टूडेंट्स का, आई थिंक मोर देन अ मिलियन, 10-12 लाख जो हर साल विदेशों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं इंडिया से पढ़ने के लिए, तो उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाला है आने वाले सालों में? देखिए, आपने H1B वीजा की बात की, ये मुद्दा अभी नया नहीं है, दिस हैज बीन गोइंग ऑन एवर सिंस। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आती है इससे जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, जो IT इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको भी दिक्कत आती है। मेरे दोस्त हैं कुछ, दे आर वर्किंग इन द स्टेट्स, सम इन कनाडा, सम इन द यूके, तो दिक्कत आती है उनको। लेकिन देखिए, ये सब कोई अपनी अपनी लोकल गैलरीज को केटर करता है। ट्रम्प साहब आए हैं अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे से, तो उनको इस चीज पे ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा। पीछे जो एक्चुअल जो डिसीजंस होते हैं, वो राउंड ऑफ टॉक्स होते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, वो बंद कमरों में बैठ के उसकी डिस्कशंस होती हैं, वो नेगोशिएशंस होती हैं। एक्चुअल में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ अपनी अमेरिकन गैलरीज को प्ले कर रहे हैं वो। तो ये हार्ले डेविडसन की भी बात होती थी कि इंडिया में जो हार्ले डेविडसन पे इतने ज्यादा टैक्स लगता है जिससे वो कंपेटिटिव नहीं हो जाता, उस पे भी ट्रम्प साहब ने बड़ी बार कहा है कि हार्ले पे आप हटाइए, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक, उसको एंटी टैरिफ पॉलिसी कहते हैं ना, इंडिया काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाती है वो। तो बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं एक्चुअली, जो एक्चुअली सिर्फ गैलरीज को प्ले की जाती हैं। रियलिटी से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। हाँ, वो नेम सेक के लिए कुछ देर तक में भी रिस्ट्रिक्शंस को टाइट करेंगे, फिर ढीला छोड़ दिया जाता है। तो ये इस तरह से ये चीजें चलती हैं। Intelligence or the spy agencies which are very active and very effective in the world? देखिए, इंटेलिजेंस की दुनिया एक बड़ी दिलचस्प दुनिया है। आपने जेम्स बॉन्ड का नाम सुना ही होगा, आप मूवीज देखते हैं किस तरह से, पर जितना वो फ्लैम्बेयंस मूवीज में देखने को मिलता है, असल में काश उतना ही दिलचस्प होता। ऐसा होता नहीं है। हमारी इंडियन मूवीज में भी दिखाया जाता है किस तरह से जो एजेंट्स को या वो सब। मुझे लगता है अगर कोई सीरीज या कोई मूवी जो करीब आती है to explain the life of an intelligence officer is Family Man. I think Manoj Bajpayee साहब उसमें, that comes very close to how the world of intelligence works. It would be Mossad. I think Mossad is known for its amazing operations. 1948 में जब ये स्थापना हुई इसराइल की, डेविड बेन गुरियन, उसको फादर ऑफ इसराइल भी कहा जाता है। तो ये मोसाद का फाउंडेशन तब से हो गया था, पर ओपनली कभी
फाइल्स में नहीं डिक्लेयर किया गया कि मोसाद नाम की कोई एजेंसी एग्जिस्ट भी करती है। और 1961 में एक जब ऑपरेशन हुआ तो वहां पे उनको पब्लिकली एक्सेप्ट करना पड़ा कि यस देयर इज दिस, वी हैव एन इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज कॉल्ड मोसाद। और मोसाद के एक बड़े ही पॉपुलर एक स्पाई हैं जो उनके ऊपर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज भी बन चुकी है, एली कोहेन, अगर आपने नाम सुना होगा एली कोहेन का। तो ही इज वन ऑफ द अमेजिंग, कहते हैं ना देश के लिए जान देना, सेल्फलेस सर्विस, ये उसका जीता जागता नमूना। किस तरह से उन्होंने इसराइल को जंग जीतने में 1967 में जो 6 डे वॉर हुई थी, इसराइल वर्सेस 5 अरब कंट्रीज, जिसमें इजिप्ट थी, लेबनान, जॉर्डन, इराक और एक और कंट्री, 5 कंट्रीज थी, उनको इसराइल ने अकेले कैसे हरा दिया। तो इफ आई टेल लिटिल बिट अबाउट मिस्टर कोहेन इजिप्ट में जन्म हुआ इनका, ज्यू थे, फिर ये वापस इसराइल में आए। इनका इंटरेस्ट था स्पाई मोसाद ज्वाइन करने में, पर इनको काफी बार रिजेक्ट कर दिया गया। तो बाद में जब इनको हायर किया गया तो इनको एज अ बिजनेसमैन अर्जेंटीना भेजा गया, तब इनकी आइडेंटिटी चेंज कर दी गई। कामिल अमिन थाबित कुछ नाम दिया गया इनको, एक अलग अलायंस दिया गया इनको, कामिल अमिन थाबित। तो वहां से ये अर्जेंटीनियन सर्कल्स में राइज करते गए एज अ बिजनेसमैन। और वहां सीरिया तब इसराइल पे काफी काफी ऑपरेशन चला रही थी, तो सीरियन कुछ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के टच में आए वहां से। दैट वाज ऑल प्लांटेड। इस तरह से वो फिर इन्फिल्ट्रेट किए सीरिया में। सीरिया के तब के बहुत ही एक मशहूर पॉलिटिशियन थे मिस्टर अमिन, उनके ये काफी करीबी हो गए। और कितने सालों तक वो 4 से 5 साल तक लगातार वो वहां रहते हुए, वहां मिलिट्री डमास्कस के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के पास रह के किस तरह से उन्होंने सीक्रेट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर के थ्रू वो देते रहे। और 67 की जो वॉर की मैं बात कर रहा था, वहां इसराइल के जीतने के पीछे इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी रहा। और गोलन हाइट्स, अगर आप जानते हो, गोलन हाइट्स को जीतने में भी मिस्टर अली कोहेन और कामिल अमिन थाबित, जिनका जो अलायंस नेम था, उनका बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था। 1964 में देखिए एक स्पाई की जिंदगी काफी ही एक गुमनामी में रहती है। वो अपनी फैमिली से मुझे लगता है 5 वर्षों में 2 या 3 बार मिले होंगे, ऐसा ही था। और 1964 में जब वो आखिरी बार मिलने आए तो उन्होंने अपनी वाइफ से यही कहा कि यू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, इफ आई डोंट कम बैक यू गेट मैरिड एंड डोंट लीव अ लोनली लाइफ। एंड देन ही वेंट बैक। और तब वो ट्रांसमिशन करते हुए एक बार ऐसा हुआ कि जब गोलन हाइट्स का इंफॉर्मेशन पास ऑन हुआ और कुछ सीरिया की जो ऑपरेशंस फेल होना शुरू हुए, तब जो मिलिट्री इंटेलिजेंस था उसमें भी तब्दीली की गई, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड बदल दिए गए वहां पे। तब उनको शक हुआ कि कुछ ना कोई मोल है जो हमारी इंफॉर्मेशन इसराइल को पास कर रहा है। तो एक रात ऐसा किया गया कि क्योंकि ये मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के पास ही ये रहते थे, वो पूरी मिलिट्री ट्रांसमिशन बंद कर दी गई तो स्पॉट की वो कौन सा एक ट्रांसमिशन है, वो कहां से जा रहा है। तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रेस आउट किया सोर्स कहां से हो रहा है। तो रंगे हाथों मिस्टर कोहेन को पकड़ लिया गया और फिर उनको अपनी सुनवाई का भी मौका नहीं दिया। और जो डमास्कस स्क्वायर में उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया। और ये उनके गले में एक पोस्टर चिपकाया गया जिसमें लिखा था कि दिस इज अ गिफ्ट टू इजराइल फ्रॉम द अरब वर्ल्ड। तो ये था इस तरह से वो अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद भी हुए। और उनकी एशेस तक भी नहीं लौटाई गई, उनके जो रिमेन्स थे वो भी नहीं लौटाए गए। इनफैक्ट उनको 3 बार अलग अलग जगह पे दफनाया गया है सीरिया के द्वारा, ताकि उनको खुद नहीं पता है कि अभी मिस्टर कोहेन की रिमेन्स कहाँ हैं। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल टू शो यू हाउ दीज पीपल दे वर्क सेल्फलेसली टू सर्व देयर ओन कंट्रीज। एक 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक एजेंट थे रिचर्ड सॉर्ग थे। वो डबल एजेंट थे, वो सोवियट्स के लिए भी काम करते थे, जर्मन्स के लिए भी, रश और आई थिंक अमेरिकन के लिए भी। और उन्होंने हिटलर को बताया था कि लेनिन को बताया था कि हिटलर जून में अटैक करेगा। तो किस तरह से ये लड़ाइयों के रुख को बदल देने का वादा रखते हैं। तो ये हम इन लोगों की वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन से देख सकते हैं। As you mentioned in the initial conversation about the NGO, you have आपने जो NGO बनाया था, तो उसमें क्या-क्या सोशल इश्यूज आज कल के जो हमारे जो सोसाइटी में सोशल इश्यूज बहुत सारे हैं, बहुत सारे ड्रग्स से रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो क्या-क्या चीजें आप लोग कवर करते हैं एंड उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे-कैसे लोगों से मिलने से मतलब समाज की जो सच्चाइयां हैं क्या-क्या आपको पता चलती है और कैसे आप लोग उसको टैकल कर रहे हैं?
देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर आजकल बना हुआ है, वो है ड्रग्स और नशा। यूथ आज का काफ़ी भटक गया हुआ है और सही रास्ते पे जाने के बजाय डिस्ट्रैक्टेड हो गया है ड्रग्स, अल्कोहल और ये सब चीज़ें, जो कि उनको अंदर से खोखला कर रही है। तो आई थिंक सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम है जो यूथ में आज है। जिस इलाके से मैं आपको अखनूर के बारे में बताया, तो एक बड़ा ही शांत एक इलाका था ये। यहाँ पे भी मुझे अब इतने वर्षों के बाद जब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी व्हेन आई गेट टू टॉक टू लोकल ऑफिसर्स हियर, कि यहाँ पे भी लॉट ऑफ ड्रग पेडलिंग इज हैपनिंग एंड यूथ इज टेकिंग टू ड्रग्स। मे बी ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी टू द पाकिस्तान बॉर्डर, वो भी रीजन हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक दुर्भाग्यपूर्ण जो एक बात है। इसके अलावा देखिए, फिटनेस या करियर काउंसलिंग या क्लाइमेट चेंज को लेके अवेयरनेस, इस इन मुद्दों पे काफ़ी एक्टिवली मैं चैंपियन करता हूँ इस कॉज़ को, particularly यूथ को slumber से slumber the youth from its, awaken the youth from its slumber, that's it's sleeping, the sleeping youth. It needs to put the country first. If you put the country first and always, I think you will not feel disheartened and demoralized. आप सोशल मीडिया का देखिए किस तरह से सोशल मीडिया एडिक्शन एक तरह से होती है। उसको डील करने का तरीका मुझे लगता है उनके अंदर कुछ और आग पैदा की जाए, तो ताकि वो उस चीज़ से हट जाएँ। हम उनको बोलेंगे कि नहीं, सोशल मीडिया को यूज़ मत कीजिए, वो होने वाला नहीं है। The only way out is to ignite the fire in them, give them the wings of fire, as our President Abdul Kalam also said, the legendary president, the missile man of India. So these kind of inspirations is needed to be generated amongst the youth, ताकि उनको प्रैक्टिकल रियलिटीज का पता हो, उनको अपना अगले 15-20 साल में, जैसे देश का जो आने वाला टाइम है, इंडिया इज इन द गोल्डन पीरियड currently. If the youth works in the right direction, this demographic dividend that we have, we should not let it turn into a demographic disaster. When we are a youthful country, average age of 29 or so, in that range. So most of the countries of the West, Japan, and they are turning old. We are, bubbling with youth. Let's not this potential go down the drain and become worthless. That's the idea. That's the motivation behind this. And particularly, whatever we all learn through life, it is important to give back to the society in whatever limited capacity we can. ज़रूरी नहीं है हम करोड़ों रुपए का दान ही करना है हमें, पर अगर हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत, अगर कोई हमारी चीज़ है, हम हमें जो दे सकते हैं, हम वो भी अगर दें, तो मुझे लगता है वो भी एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हो सकती है। तो यही है, अपने आगे पीछे के बच्चों को एक जागरूकता पैदा की जाए, फिटनेस की तरफ लेके जाया जाए, ड्रग्स से दूर किया जाए, क्लाइमेट चेंज की तरफ एक अवेयरनेस की जाए, और एजुकेशन और एक राइट करियर चूज़ करने में उनको अगर कोई गाइडेंस दे पाएँ, तो यही एक छोटी-सी एक हम्बल एक कोशिश है, जो हम कर रहे हैं। That's really a great initiative by you and your team, sir. And we hope कि whatever the efforts you all are putting in this noble job, वो right direction में right लोगों तक पहुंचे और हमारे देश का कुछ भला हो. And more people should be aware about the right thing to do in their life. Because अगर starting के phase में ही life में उनको पता नहीं है कि career में जाना कहाँ है, तो वो effort put नहीं कर पाएंगे. So and I think uh, not only your NGO, बहुत सारे NGOs हैं and बहुत सारे mentor, and you are also a mentor also for the youth, right? So बहुत सारी चीजें आप लोग cover कर रहे हैं, and I hope कि these things reaches to the right person in the right direction. इसमें जोड़ना चाहूँगा कि recently we have started this initiative called Super 50, where we are, aiming to reach young boys and girls who are preparing for the IAS. So me and my younger brother, who is ex-army officer, Major Abhinandan, currently an IPS officer, and we both are planning to, reach out to talented young boys and girls who have a passion for building this country. We want to create future leaders. We want to make this country great again. So that's a little initiative. We can reach out to as many people out there who want to create a difference, because together we will definitely create a difference. So that is also one thing I wanted to mention. I Right. believe that if you're preparing for the UPSC and if you are a UPSC aspirant, in case you do not get through and you do not join the services, still you become a better person, right? Absolutely. Because preparing or becoming an aspirant is a journey जहाँ से आपको बहुत सारे लाइफ में कॉन्फिडेंस मिलता है, लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखने को हो सकते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं घर से दूर हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ कैसे इंडिपेंडेंटली रहना है. So preparing for any job that makes you a confident and independent person. We were also talking about the women empowerment, and recently there was a letter by the very respected and a very senior officer of the Indian Army, Lieutenant General Puri sir, and
that was actually a secret message, we would say, because that was an internal communication between them. But unfortunately, that got leaked out in the world of social media. And it says that the commanding officers in the army, who are the women commanding officers, they had focused only on the 8 women of commanding officers. It says that there was a lot of ego problem, and they were incompetent to handle that mission. So what's your take on that? Well, it is a very sensitive matter. And yeah, I have read this news where General Saab has mentioned about certain issues. I will not like to comment on what General Saab has said, but if we ask my own personal opinion, I believe this has been a very, very remarkable decision for women to come in command roles, and it is a very, very welcome move because we have been fighting the women fraternity, the women officers. They had been fighting for this for quite some time because a Fauji is not a gender. Fauji is irrespective of men, women, or any other gender for that matter. A Fauji is a Fauji, irrespective. So I think it's very early to put such an observation. I think let's give more time to assess and have a nuanced understanding of the situation. And wherever we see women are doing amazing work in leadership roles, whether it's our Prime Minister Indira Gandhi or other leaders who are doing exceptionally well in various fields, why not in the military? So I think uh, I would all I can say is uh, let's give more time to this, and let's not judge our women officers too soon. At the same time, there are gentlemen officers also who may not be doing well. So it's always should be we should criticize or not criticize based on the work. Keep the genders outside of it. If a male officer is doing bad or female officer is doing bad, that should not be the point of discussion. If a CEO is performing good, applaud that person irrespective of gender. And if there are certain issues in the performance, point those deficiencies, but don't bring gender in that. I think that is what my observation is, and I all the more power to all the women officers who are doing exemplary work and making a name for themselves. When Dr. Sarabhai in 1960s, when he launched India into space, he said, "Sky is not the limit; it's just the beginning." And I would say for all the women officers and the ladies all around the world that sky is not the limit. Women, in fact, they are the more powerful gender. They're more empathy, the more compassion for their fellow officers. So Probably, I think in past few years, if we see that the opportunities has grown a lot for the, if we say, to the opposite gender, that is the female or the women, we say. And that is the reason that the India has the highest number of the women pilots in the world. Correct. And I if I may think add if one we thing, if I may add one thing to it, if you have read about this existentialist philosopher Simone de Beauvoir, she in her book The Second Sex, she has mentioned that one is not born a woman, but is made to be so. How she outlines the otherization of women in the society, that how women had to fight to come up the ranks. And now when they're coming up, let's not make them insecure and let's not question their pedigree. Let them have their wings and let them fly. That's the idea. That's the approach that we should be having. Because otherwise, if we are making them too insecure or we pointing fingers too soon, I think we are doing a great disservice to the entire humanity, I would say. I think that sums up the discussion. of course, sir. And I think last year when I was there in Europe, जब मैं पोर्ट पे गया तो I was surprised to see कि half of the truck drivers were the female. That is very rare in India, and I think अगर 1000 में कोई एक अगर दिख जाए चला रहा है, surprising to me कि यूरोप में ट्रक ड्राइवर्स, आप देखें कैफे ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, जहां पे भी देखिए वहां की जो वुमेन की जो परसेंटेज है, दैट इज वेरी मच. एंड ऑफिशियल डेटा आल्सो सेज कि वहां की जो प्रेसिडेंट, लाइक प्राइम मिनिस्टर और जो उनका जो मिनिस्टर्स हैं वहां पे अराउंड 50%, इफ वी से लाइक 40-50% का जो परसेंटेज है, Hmm. दैट इज द फीमेल. एंड दैट इज, आई Hmm. थिंक, कि इंडिया को वहां तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लगेगा. एंड आई थिंक विद द इक्वल नहीं, अपॉर्चुनिटी व्हिच इज हम देयर इन हम इंडिया. हम यूरोप की बात क्यों करें? Let's go to the northeast part of India where women are taking leadership roles. We have a matrilineal society in our northeastern India. They are miles ahead when it comes from the mainland, so to say. वहां पे अगर आप जाइए आपको देखने को मिलेगा women are running tea stalls, they're running groceries, they're doing all the work, and they take responsibility.
वहां पर उल्टा होता है, शादी करके लड़का जाता है लड़की का घर. So I think for that we need to learn a thing or a few from the northeastern part of it. डिस्कशन हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की स्टार्टिंग फ्रॉम योर इनिशियल डेज एंड योर लाइफ इन द कॉर्पोरेट एंड देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द करंट टॉपिक्स जितने भी हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज से एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर वेरी इंसाइटफुल एंड थैंक यू सो मच एट द एंड सर वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज टू द हंग्री यूथ ऑफ टुडे जो बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहता है आज की लाइफ में जो बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है, बिकॉज आई बिलीव सक्सेस इज ऑलवेज अ हार्ड ग्राइंड. Never take the lift. It may go bad and leave you high and dry. You may take time to reach your goal if you take the stairs, but one day you will definitely reach, and the journey will be more beautiful. All I can say to the youth is enjoy the process, become the one with it, because once you become one with the process, I think the destination is just an illusion. Actually, I always keep saying this: the fear of failure is the biggest prisoner of the youth. Don't fear failure in any walk of life. Whatever you want to achieve, let your wings fly high and soar into the high skies. तभी आप अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाओगे. कुछ बन जाना, कोई ऑफिसर बनना या कुछ बन जाना आपकी जिंदगी का लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए. आपकी जिंदगी का लक्ष्य आपके अंदर की जो खूबसूरती है, अपने अंदर के जो पोटेंशियल है, उसको तराशना है आपको. अगर आप उस प्रोसेस में आप कामयाब होते हैं, तो लक्ष्य तो इमटेरियल हो जाता है. क्योंकि अगर आपको पता है कि मैं इतना कर सकता था और मैंने इतना कर दिया, तो that answers the question. That takes care of itself. So follow your passion. Be like, put your blinders on and just look forward and starve the distractions that come your way. And more importantly, I would tell you that keep your personal benefit at the last. Look the contribution that you can make in making our country great again. What contribution you can give to this nation, because we are sitting today in a free country because many generations before us have come and sacrificed their blood, sweat and toil to make this day possible. It is not just a rhetoric here I'm trying to make, but you owe a responsibility, you owe a rent to the 7 generations that have gone before you and the 7 generations that are coming after you. And you are at the cusp of that historic point in human evolution where what you do today will definitely, in fact, will decide the course of human history. That is very, very pertinent. And if you understand how much vital role you're going to be playing in the march of human civilization, you will watch your every action. You will never get disheartened. You will focus on what lies ahead. And spread smiles, be happy, and do good to the society. That's all I can say. Thank you so much and your motivating words. And I hope whoever watches this conversation gets inspired and motivated by your wonderful thoughts. And जितना भी चीजें हमने current affairs की भी discuss की, it will be very helpful to them. And once again, I thank you for your for taking time on your busy schedule. And जाते जाते एक बात बोलूंगा, ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है. फिर तुझको क्या हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है. तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, आपका भी और आपके श्रोताओं का भी, for inviting me on your this amazing platform. And I also wish you all the luck in all your coming endeavors, and keep up the good work and keep inspiring the youth by bringing good stories and genuine, unsensational stories, good content. That's all I would say. And all the best and Jai Hind to all your audience.